Well, these Ukrainian children were already fighting one battle against cancer when Ukraine's war broke out. And now they've had to be evacuated here to Poland. Young, defenseless victims now facing trauma on two fronts. All my family was worried about my mom and my brother because it was so hard and it was a very long journey. He had 3 operations and then he had chemotherapy, but he didn't complete all of therapy because the war started. What is your brother's name? Alexei. Alexei. Hello, Alexei. Are you feeling okay? He says that everything is okay and he is so tired after journey and he not. Are you happy to be here now? He's happy a little bit because he wants to go home in Ukraine. How's your son feeling? The children are now waiting to be seen by a Polish pediatric oncologist who will assess his case, determine which of the most serious needing urgent treatment here in Poland, or who could be sent to a hospital elsewhere. The real worry now is that while these children are safe from the war, they are plunged back into danger with their illness, rushing to resume treatment that's been broken off. My channel. If this was normal situation, then he should stay at the hospital. But at this moment, Welcome to my channel. Can be treated out of the hospital and who absolutely has to stay there. This is a very serious situation. Are there patients who you think, cancer patients who you think could die from having to have everything interrupted like this? Yes, most of these kids are in a life-threatening situation, and any kind of delay of the treatment is very bad for them. Ну, сумую за домом і за бабою, за дідом. Do you feel safe now here? Так, не треба бігати в укриття. Бо коли бігати в укриття, то і страшно, і важко. Well, the first children are now being driven off to a German hospital, transported by these volunteers who have come here from Germany to help. It is now a race to try to find spots in hospitals right across Europe. And meanwhile, busloads more of children with cancer are waiting in Ukraine to be evacuated. रूस यूक्रेन का युद्ध देख दुनिया हैरान है। हैरानी की बात यह कि परमाणु हथियारों से संपन्न रूस के सामने यूक्रेन की सेना इतने लंबे समय तक कैसे टिक गई। रूस, जिसके हथियार दुनिया भर के देश खरीदते हैं और अपनी सैन्य ताकत पर गुमान करते हैं, उसके सामने यूक्रेन अकेले कैसे टिका हुआ है। और जिस लड़ाई को 2 दिन का युद्ध माना जा रहा था, वो इतने लंबे समय तक आखिर कैसे चली। यूक्रेन का हर आम और खास नागरिक आज हथियार लेकर सड़कों पर है, लेकिन बावजूद इसके रूस को अकेले रोक पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का क्या है सीक्रेट अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूस से जंग के लिए यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। इसके लिए अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश सीक्रेट सैन्य अड्डे के साथ साथ सीक्रेट सैन्य और एयर रूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
इन रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका यूक्रेन बॉर्डर के पास स्थित एक सीक्रेट एयरफील्ड का इस्तेमाल हथियार सप्लाई के लिए कर रहा है। हालांकि इस अड्डे के लोकेशन का खुलासा अभी तक नहीं किया गया, लेकिन इसके पोलैंड और पड़ोसी देशों में कहीं स्थित होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यहाँ सैन्य साजो सामान पहुँचने के बाद उन्हें सड़क मार्ग से यूक्रेन की सीमा में दाखिल कराया जा रहा है और जंग के मोर्चों पर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस एयरफील्ड से रोज करीब 17 से 18 सैन्य विमान उड़ान भर रहे हैं और सैन्य साजो सामान लेकर पहुंच रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री पावर का सीक्रेट क्या है? यूक्रेन के हथियारों की सीक्रेट सप्लाई के पीछे EUCOM यानी कि अमेरिका यूरोपीय कमांड की सक्रियता मानी जा रही है। रूसी हमले शुरू होने के बाद से 14 ऐसे देश सामने आए हैं जिन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। इस हथियार को यूक्रेनी सैन्य अड्डों तक पहुंचाने के लिए EUCOM के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि यूरोपीय यूनियन, जो कि एक नॉन मिलिट्री ग्रुप है, वो भी $499 मिलियन की मदद सैन्य साजो सामान के लिए यूक्रेन को दे रहा है। जर्मनी भी यूक्रेन को एंटी टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस रिपोर्टों के अनुसार यूएस और नाटो देश अब तक यूक्रेन को 17,000 एंटी टैंक मिसाइल, 2,000 एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइलें सप्लाई कर चुके हैं। जंग में यूक्रेन को टिकाए रखने के लिए अमेरिका की ओर से $350 मिलियन की इमरजेंसी आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा चुकी है। कब से चल रही है हथियारों की सप्लाई? यूक्रेन को हथियार और बाकी मदद का सिलसिला आज की बात नहीं है। यह सिलसिला 2014 के क्रीमिया संकट के बाद से ही तेज हो गया था। अमेरिका और नाटो देशों ने तभी से रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में गोलबंदी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने 2018 में 210 जैवलिन मिसाइलें और 37 लॉन्चर्स यूक्रेन को डिलीवर की थी। यूक्रेन को इसके बाद भी लगातार सैन्य मदद मिलती रही, लेकिन रूसी हमले शुरू होने के बाद से नाटो के 30 सदस्य देश, अमेरिका और बाल्टिक सागर के देशों की ओर से लगातार सैन्य मदद भेजी जा रही है। किन चीजों की हो रही है सप्लाई? यूक्रेन को भेजे जा रहे इन सैन्य साजो सामान में एंटी टैंक मिसाइलें, मिसाइल लॉन्चर, सरफेस टू एयर स्टिंगर मिसाइलें, सैन्य वाहन, ईंधन, कारतूस, बारूद, असॉल्ट राइफलें और सैनिकों के लिए राशन आदि शामिल हैं। पश्चिमी देशों की साफ रणनीति दिख रही है कि यूक्रेन के पक्ष में सेना भेजकर रूस से सीधा टकराव मोल लेने की जगह ये सभी देश यूक्रेन को सैन्य साजो सामान और आर्थिक मदद भेजकर अपना सहयोग दे रहे हैं। रूस ने हाल ही में एक ऐसा विचित्र, धमकी भरा और डराने वाला वीडियो जारी किया है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और संस्थान हैरान हैं। दरअसल एक वीडियो में दिख रहा है कि रूस के कॉस्मोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर मौजूद बाकी एस्ट्रोनॉट साथियों से मिलते हैं, फिर अपने मॉड्यूल में चले जाते हैं। इसके बाद रूसी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन से अलग होता दिखता है, जिनकी मॉनिटरिंग धरती पे मौजूद रूसी स्पेस एजेंसी से की जाती है। इस डरा देने वाले वीडियो को रूस के सरकारी मीडिया संस्थान नोवोस्ती ने जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन विज्ञान के क्षेत्र में शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस ने अपने अलग अलग रास्ते चुने थे, लेकिन बाद में दोनों एक साथ काम करने को तैयार हो गए। स्पेस स्टेशन बनाया गया। मदद करने के लिए जापान, यूरोप और कनाडा साथ में आ गए। 30 सालों से दोनों स्पेस एजेंसी एक साथ काम कर रही है। अब इस काम में मदद करने के लिए स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां भी आ गई हैं। 9 साल तक रशिया पर निर्भर रहा यूएस। साल 2020 में स्पेसएक्स ने जब पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पहुंचाया, तब जाकर अमेरिका को थोड़ी राहत मिली। नहीं तो उससे पहले 9 सालों तक अमेरिका पूरी तरह से रूस पर निर्भर था, क्योंकि अमेरिकी स्पेस शटल प्रोग्राम बंद हो गया था। लेकिन इस समय स्पेस स्टेशन पर भी थोड़ी गर्माहट चल रही है, क्योंकि उनके नीचे जमीन पर रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। इससे अमेरिका नाराज है, साथ ही यूरोपियन देश भी। रशिया ने दिया मॉड्यूल अलग करने का सिग्नल। यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही रूस ने इस बात का सिग्नल दे दिया था कि वह साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अपने मॉड्यूल को अलग कर लेगा। हालांकि एक बेहद हैरान करने वाली वीडियो में यह चीज सामने आई है, जिसमें रूस स्पेस स्टेशन से अपने मॉड्यूल को अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
नासा वॉच ब्लॉग ने नोवोस्टी द्वारा बनाए और जारी किए इस वीडियो को शेयर किया है। इसमें बताया है कि यह वीडियो स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के लिए कितना खतरनाक है, उसके लिए भयावह है। वीडियो में क्या है? इस वीडियो में रूसी एस्ट्रोनॉट ISS पे मौजूद अपने साथियों को गुड बाय कहते हैं। उसके बाद अपने मॉड्यूल में चले जाते हैं। रूसी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन से खुद को अलग कर लेता है। सूरज ढल रहा होता है और एक अलग तरह का संगीत बजता है। पिछले कुछ महीनों से रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच तनाव का माहौल है। यूक्रेन पर हमले को लेके अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बाद रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने अमेरिका को धमकाते हुए ट्वीट किया था कि क्या आप चाहते हैं कि हम स्पेस स्टेशन को लेकर अपनी सहायता खत्म कर दें? दूसरा विकल्प ये है कि 500 टन वजनी स्पेस स्टेशन को भारत या चीन पर गिरने दें। क्या आप उन्हें इस तरह की स्थिति से डराना चाहते हैं? स्पेस स्टेशन रूस के ऊपर से नहीं उड़ता, इसीलिए सारा खतरा आपका ही है। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से रूसी मॉड्यूल के अलग होने का वीडियो टेलीग्राम पर शेयर किया गया है। हालांकि इससे ये नहीं लगता कि नासा और रोसकॉस्मोस के बीच संबंध सही होने वाले हैं, न ही बिगड़ने वाले हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा वीडियो से लोग हैरान जरूर हैं। मुजफ्फर खान साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपने न सिर्फ ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है, आप लोग कह रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल प्रायोजित हैं। बीजेपी ने ये एग्जिट पोल कराए हैं, क्या आधार है आपके इस आरोप का? देखिए अंजना जी, अगर हम ईवीएम की बात करें, हाँ, तो आपको याद होगा कि किस तरह से वाराणसी के अंदर ईवीएम का ट्रक पकड़ा गया और दूसरी गाड़ियां वहां से फरार हो गईं। उसके बाद वहां के जो डीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये डेमो के लिए हम लोग लेके जा रहे थे। तो ये बात तो उनकी वहां के कमिश्नर ने ही खारिज कर दी एक तरह से। उन्होंने माना कि जो उसके प्रोटोकॉल होते हैं उसका पालन नहीं हुआ, इसमें वाकई गलती हुई है। तो जब कमिश्नर साहब ने गलती मान ली, तो अंजना जी आप बताइए कि इसमें समाजवादी पार्टी की जो आवाज थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा था, उसको आप कैसे नकार देंगे? एक सेकंड खान साहब, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ी की बात आई, अखिलेश जी ने उठाया, उसके बाद एक एडीएम की पर कार्रवाई भी इलेक्शन कमीशन ने की है। ये बताता है कि खामियां हैं और उस पर उंगली रखी जानी चाहिए। अच्छा है कि विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पूरे चुनाव को संदिग्ध कह देना क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो फिर इसका उपाय क्या है? दूसरी तरफ एग्जिट पोल पर मेरा आपसे सवाल है, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े होकर कह रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल बीजेपी के प्रायोजित हैं, ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? इसका आधार क्या है? देखिए अंजना जी, मैं बहुत छोटा सा तर्क दूंगा आपको। जो एग्जिट पोल आए हैं, दरअसल आपके ही चैनल के एग्जिट पोल की हम बात कर ले, पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वो 58 वोटों पर वोट डाले गए थे। उन 58 सीटों पर वोट डाले गए थे। तो उन 58 सीटों में आपको याद होगा कि वहां जाट नाराज किसान 14 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे गाजीपुर में बैठे रहे और 700 किसानों की जान चली गई, किसानों को कुचल दिया गया। वो किसानों की एक अलग बेल्ट थी। आप बताइए वहां पर वहां पे आपका चैनल है वो अंजना जी 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पे जिता रहा है? इसलिए एग्जिट पोल प्रायोजित है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को केवल आप 8 सीटें दे रहे हो। क्योंकि आपको लगता है कि नाराजगी है लोगों में, और जो आप किसान वर्ग की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए एग्जिट पोल प्रायोजित है। मतलब आपके मन के हिसाब से हो जाए तो वाह वाह, अगर आपके मन के अनुसार नहीं है एग्जिट पोल, मान लीजिए कल नतीजे आते हैं जिसमें ये हो जाता है, तब आप ईवीएम पर क्या कहेंगे जल्दी से? लेकिन मुझे लगता है प्रदीप जी आपके पास रुकिए, खान साहब रुकिए, मिस्टर खान रुकिए। देखिए आप खुद ही फंसते जाएंगे, जितना आप बोलेंगे आप फंसते जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर आप कह रहे हैं एग्जिट पोल प्रायोजित है। जरा सोच समझ कर बोलिए। मान लीजिए कल नतीजों में आप जीत जाए, फिर ईवीएम ठीक रहेंगे? ईवीएम में गड़बड़ी की बात नहीं की है, फिर ईवीएम ठीक रहेंगे। से वोट चोरी किया जा रहा है अंजना जी, चोरी किया जा रहा है, इतने पैमाने पर चोरी हो रहा है कि रिजल्ट बदल दिया जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए मौजूदा हालात जो है क्या बता रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी और सुप्रिया जी, आप दोनों के पास में आ रही हूं। उससे पहले मिस्टर गुप्ता, सीधा आरोप है, वो कह रहे हैं बीजेपी के प्रायोजित एग्जिट पोल है आपका, जवाब आपका।
अंजना जी, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात, एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, वो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज तक मुझे नहीं लगता देश में ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई सरकार या ऐसी कोई पार्टी बनी है जिसको प्रायोजित किया जा सके। हम गलत हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं, लेकिन कोई हमें खरीद लेगा, मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसी कोई ताकत बनी है जो आज तक और एक्सेस माई इंडिया के पोल को खरीदने का मादा रखती है। पहली बात ये, तो आप ये अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है। आपने भी देखा होगा जब एग्जिट पोल दिल्ली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के आए थे तो तब सही थे, जब झारखंड के आते हैं तो सही थे, जब भाजपा को हारते दिखाया था सही थे, बंगाल के अंदर टीएमसी के समय आ रहे थे तो सही थे। अब बीजेपी जीतते दिख रही है तो गलत है। ये मुझे जरा समझ में नहीं आई ये वाली बात। ठीक है, खान साहब सुना आपने? अंजना जी, आपको भी याद होगा, एक जमाना हो गया आपको, आप पत्रकारिता में हम एक लंबे समय से आपको देख रहे हैं। आप ये बताइए, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं आज तक, क्या वो सही साबित हो पाए हैं? 48 आउट ऑफ 52। हमने तो ये देखा है, ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं। दिल्ली में नहीं, सही और गलत, सही और गलत पर चर्चा हो सकती है खान साहब, लेकिन जहां आप प्रायोजित और खरीदने वाली बात करेंगे तो फिर आपको 10 बातें सुननी पड़ेंगी जो आपकी दलीलों को धराशायी कर देंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये पूरा बवाल क्या है अपने दर्शकों को भी जरा बता देते हैं। बीजेपी की हार, वहां मतगणना धीमे करने का निर्देश, ये अखिलेश यादव का आरोप है। जो उनके आरोप है, वाराणसी में दरअसल खाद्य गोदाम से निकल रही थी गाड़ी, इसी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। गाड़ी में ईवीएम मशीनों को देखकर भड़का हंगामा, और उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एसपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी रोकी गई। पुलिस के साथ एसपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। वहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी झड़प भी हुई। आप वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो भी सामने। वोटों की चोरी करने की कोशिश में है बीजेपी, ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। वाराणसी में 3 ट्रकों में जा रही थी ईवीएम मशीनें, और इसी के साथ एक एडीएम पर कार्रवाई भी हुई है। एग्जिट पोल के जरिए चोरी छिपाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का जिलाधिकारियों को फोन, मुख्य सचिव फोन कर रहे हैं जिलाधिकारियों को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के जरिए वोटों की चोरी होगी। जहां बीजेपी की हार है वहां पर धीमी गति में गिनती होगी। ये तमाम आरोप अखिलेश यादव ने बीते दिन लगाया। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी अब आपके पास आते हुए। मिस्टर शुक्ला, एडीएम पर कार्रवाई हुई है, अखिलेश यादव सीधा आरोप लगा रहे हैं। कल भी आपसे चर्चा हो रही थी, आपने मुजफ्फर खान साहब की भी बात सुनी। उनका आरोप है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ मिलकर ईवीएम में कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाए, कैसे देरी की जाए, आगे पीछे किया जाए, चोरी हो रही है वोटों की। बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। जी देखिए, हास्यास्पद आरोप है, और जब पराजय के गर्त में जिस तरह से गिरे हैं, वो हताशा में आकंठ डूबे हुए हैं, इस तरह के आरोपों के अलावा उनके पास अब राजनीति में प्रासंगिकता के लिए कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। ऐसे में इस तरह के अब जो है आने वाले दिनों में लगातार इस तरह के आरोप लगाएंगे। वो लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताएंगे। सच्चाई ये है कि वंश तंत्र को, माफिया तंत्र को, गुंडा तंत्र को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। 14वां आज दिन है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से कहा जाता है कि नाटो को लेकर हमारा जोर नहीं है, तो रूस की ओर से यह बयान सामने आता है कि ज़ेलेंस्की का सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है। इन सब के बीच क्या आपको लग रहा है कि कम से कम 14वें दिन एक सही दिशा में दोनों ही देशों की ओर से जो नरमी के संकेत दिए गए हैं, इसका असर अब दूर तलक जाएगा क्या? राजेश, देखिए चित्रा, पहले मैं बता दूं, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, तो यहाँ अभी काफी भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। कीव शहर में बर्फ काफी गिर रही है। आज सुबह से ही टेम्परेचर काफी लो था, लगभग -6 दिन का टेम्परेचर था आज, और अभी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जहां तक सिचुएशन का यहाँ सवाल है, देखिए कीव में बिल्कुल शांति है। पिछले आज चौथा दिन और 4 रात हो चुकी हैं। सायरन जरूर बजे हैं, लेकिन कोई बमबारी नहीं हुई है। इसके अलावा पूरी यूक्रेन में और दक्षिणी यूक्रेन में लड़ाई जारी है। आपका जो इरपिन शहर है वहां लड़ाई जारी है, और रूसी सेना वहां कुछ गेन्स किए हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अभी सारा का सारा फोकस डिप्लोमेसी पे चला गया है, मिलिट्री एलिमेंट के बजाय, क्योंकि जो कल अंतालिया में बात होनी है तुर्की के अंदर 3 फॉरेन मिनिस्टर्स की, यूक्रेन के, रूस के और तुर्की के, उससे बहुत लोगों को उम्मीद है, क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन हो चाहे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हो, दोनों की तरफ से ऐसा
ऐसे संकेत मिले हैं, नरमी के संकेत मिले हैं कि वो किसी प्रकार का समाधान चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता चाहते हैं। और जो चीजें अब तक यूक्रेन बोल रहा था नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कि उनका नेटो को ज्वाइन करना या फिर वो क्रीमिया की बात हो या दोनबास की हो, ऐसा लग रहा है कि इन यूक्रेन के रुख में अभी इन तीनों इश्यूज को लेके काफी नरमी देखने को मिल रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। चित्रा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका और पोलैंड से जेलेंस्की लड़ाकू विमान मांगते हैं तो फिर उनकी मंशा सवालों की घेरे में आ जाती है। नाटो देशों को लेकर उनकी ओर से कहा गया उसको लेकर जोर नहीं है, तो वहीं लड़ाकू विमान की डिमांड उनकी ओर से की जाती है। ये दोहरा रुख आखिर जेलेंस्की का सामने क्यों आ रहा है राजेश? देखिए, ये बातचीत का मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, युद्ध तो चल रहा है और चलता रहेगा। ये नहीं है कि कल बातचीत हुए युद्ध खत्म हो गया। हाँ, ये जरूर है कि साथ साथ डिप्लोमेसी भी चलती रहेगी और संभावना है कि शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन इसकी गारंटी अभी कहीं नहीं है। जब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलता, लड़ाई जारी रहेगी, हर फ्रंट पे जारी रहेगी। कीव पे शायद हमला ना हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन बाकी हिस्सों में लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना, इस लड़ाई को में बने रहने के लिए यूक्रेन को इन हथियारों की, खासकर ये वॉर प्लेन्स जिसकी वो डिमांड कर रहा है, जो पोलैंड से आने थे और नहीं आए, उनकी जरूरत है। चित्रा, ठीक है राजेश, ये बड़ी जानकारी आप देते हुए। मौसम कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप देखिए कीव से जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजेश, इस वक्त वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं नाटो के खिलाफ रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस की ओर से कहा गया है पूर्वी हिस्से में नाटो की सेना जमा हो रही है। ये बड़ी जानकारी रूस की ओर से दी गई है। नाटो की सेना का जमा होना एक बेहद भड़काऊ कदम है। हमें रोकना ही नाटो का असली मिशन है। रूस की ओर से नाटो देश जो यूक्रेन को यकीनन मदद कर रहे हैं, उनको लेकर रूस का ये बयान, और नाटो को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। गौरव सावंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, एक तो इस बयान पर भी आपकी नाटो को लेकर रूस का ये कहना है कि नाटो जिस तरह के कदम उठा रहा है, पूर्वी हिस्से में उसका जमावड़ा हो रहा है, तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ आज नरमी के संकेत भी देखने सुनने को मिले हैं। क्या ये माना जाए कि कम से कम 14 दिन बाद ही सही, देर आए दुरुस्त आए, और इसके जरिए दोनों ही देश मिलकर एक समाधान की दिशा में कोई रास्ता तय करने वाले हैं? गौरव, प्रयास निश्चित ही हो सकता है समाधान ढूंढने का, लेकिन इस समय जो जमीनी स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ ये जो लड़ाकू विमान की मांग कर रहा था यूक्रेन पोलैंड से, पोलैंड ने पल्ला झाड़ते हुए वो कहा है कि हम वो लड़ाकू विमान जर्मनी की सीमा पर खड़ा कर देंगे, वहां के एक एयरपोर्ट पे, एयरबेस पर, जहां पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों की रामस्टीन एयरबेस पर। लेकिन वहां पर अमेरिका ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। दूसरी तरफ 7,000 अमेरिकी सिपाही अब यूरोप में तैनात किए जा रहे हैं, जिसको रूस कह रहा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है, और रूस का रवैया इसको लेकर और कड़ा हो सकता है आने वाले समय में, खासतौर पर तब जब रूस चाहता है कि पूरी तरह से एक, यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हो, और दो, यहाँ की जो सेना है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ अपने युद्धाभ्यास लगातार करती आई है, वो सेना पूरी तरह से वो निरस्त की जाए, और एक नई सेना जिसमें केवल 60,000 सिपाही हो, जिनकी ट्रेनिंग रूस करे, वो सेना, उस सेना का गठन हो। ऐसे में जब आप कीव की सड़कों को इस समय देखें, एक भारी बर्फबारी, और दूसरा कीव की सड़कों पर इस समय टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम्स लाए जा रहे हैं। ये राजधानी के दूसरे हिस्सों से और देश के दूसरे हिस्सों से राजधानी पर लाए जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो डिफेंस लाइंस है इस समय यूक्रेन की, ये सिकुड़ती जा रही हैं, और सिकुड़ कर ये राजधानी कीव पर पहुंच रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स जो अब तक इरपिन में थे, या बूचा में थे, या और इलाकों में थे, ओस्टुमल में थे, उनको वहां से खींच कर लाया जा रहा है राजधानी की डिफेंस के लिए। ये दिखाता है कि अब अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकला चित्रा, तो वो निर्णायक लड़ाई कीव के बचाव के लिए अगले चंद दिनों में हो सकती है। 5 शहरों में युद्ध विराम था, वहां से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, और वो कौन कौन से हिस्से रहे जहां पर रूस की ओर से आज भी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की गई है? इसको लेकर कोई खबर गौरव? जो 5 शहरों में रूस की तरफ से सीज फायर का या युद्ध विराम का, अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया गया, उसमें खार्किव शामिल है, सूमी शामिल है, कीव शामिल है। इन सब में ये कहा जा रहा है, मारियोपोल समेत कि वहां पर जितने भी
नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं या सिविलियंस हैं या विदेशी नागरिक हैं वो सब सुरक्षित निकल जाए, ये प्रयास है रूस का। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो आगे होगा वो केवल कॉम्बैटेंट्स होंगे या वो लोग होंगे जो युद्ध के बावजूद, युद्ध विराम के बावजूद नहीं भागे। तो अगर यहां पर अब आने वाले समय में तनाव बढ़ता है, जिस तरह से विनित्सिया में पश्चिम की दिशा में एक के बाद एक मिसाइल दागी गई थी एक एयरबेस पर, या खार्किव में जिस तरह एयर अटैक और मिसाइल अटैक दोनों हुए, तो रूस की तरफ से कुछ जगहों पर युद्ध विराम है शहरों में, लेकिन शहर के आसपास जहां एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी भी बरकरार है वहां पर उनकी मिसाइल और विमानों का हमला बदस्तूर जारी है। और यहां की सरकार अब यह कह रही है कि बातचीत के जरिए हम समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास करेंगे ऐसी परिस्थिति में जब हम घुटनों के बल नेटो का सदस्य बनने नहीं जाना चाहते। ठीक है, गौरव सावंत और राजेश पवार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहम जानकारी देते हुए। आपको बता दें हालात जिस तरह से कभी बनते हुए कभी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीच का रास्ता क्या होगा। और बड़ी खबर, रूस पर नए प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन लगाएगा। ये बड़ी जानकारी न्यूज के हवाले से सामने आई है। रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर सहमति बन गई है। यूरोपियन यूनियन का भी रशिया के 160 लोगों पर सख्त प्रतिबंध का ऐलान। वही पोलैंड यूक्रेन को देगा मिग फाइटर विमान। ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, पोलैंड सभी MiG-29 विमान फाइटर प्लेन यूक्रेन को देने का ऐलान कर चुका है। हालांकि इसके पहले अमेरिका ने कहा कि ये कदम चिंता बढ़ाने वाला है पोलैंड का। इसी सवाल के साथ राजेश सीधे आपके पास आते हुए, रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर यूरोपियन यूनियन में सहमति बन गई है, जबकि अमेरिका के ऊपर रूस आरोप लगा रहा है कि वो आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है हमारे खिलाफ। इन दोनों स्थितियों को कैसे समझा जाए, क्योंकि ये युद्ध जो दो देशों के बीच चल रहा है वो धीरे धीरे फैलता हुआ भी नजर आ रहा है, भले ही इसको आर्थिक युद्ध की संज्ञा दी जाए। देखिए चित्रा, जहां तक युद्ध के फैलने का सवाल है, ये जमीन पर नहीं फैलेगा। किसी भी हालत में नेटो या अमेरिका रूसी फौज के या रूसी एयरफोर्स के आमने सामने नहीं आएंगे किसी भी हालत में। मैं आपको ये अंडरलाइन करके बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। जहां तक आर्थिक युद्ध का सवाल है, देखिए अमेरिका के पास सबसे बड़ा तुप का पत्ता उसका इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो उसने पहले कई देशों पे लगाए हैं, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला एक्सेट्रा, और यही उसने अभी रूस पे लगाए हैं और बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन सैंक्शंस के अलावा अभी कितना भी इन्हें आगे बढ़ा ले, ये सैंक्शंस का असर हमें दिखना शुरू होगा अब के कुछ महीने बाद। लेकिन इस वॉर के ऊपर, इस युद्ध के ऊपर इनका इमीडिएट कोई इफेक्ट होना नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और रूस अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरा करके रहेगा और उसके इस युद्ध के ऊपर इन प्रतिबंधों का कोई खास इफेक्ट इमीडिएट नहीं होगा। चित्रा, पीछे से आ रही सायरन की आवाज क्या कहती है, जल्दी से राजेश। देखिए, सायरन की आवाज कहती है कि कहीं ना कहीं रडार ने कोई एयर मूवमेंट पकड़ी है, चाहे वो हवाई जहाज की हो, मिसाइल की हो या रॉकेट की हो, और ये जहाज या मिसाइल या रॉकेट कीव की तरफ आ सकता है। और नागरिकों के लिए चेतावनी है कि आप कहीं सुरक्षित जगह में शरण ले लें। चित्रा, ठीक है, सीधे गौरव आपका रुख करते हुए, एक तरफ जेलेंस्की का जो रुख है नरमी के संकेत, वही दूसरी तरफ रूसी सैनिकों को हथियार डालने के लिए उनकी ओर से कहा जा रहा है। गौरव, क्या आपको लगता है कि रूसी सैनिक, जेलेंस्की ये जो बातें कह रहे हैं कि वो हथियार डाल दें, वो भी तब जब कई मोर्चों पर यूक्रेन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग हिस्सों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गौरव, आगे बढ़ते हुए स्थिति क्या बन रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है गौरव? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हम इस समय एक चेक पॉइंट पर हैं, जहां चेक पॉइंट पर पूरी तरह से बात करने पर मनाही होती है कैमरा पर, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का मैं उत्तर देख लूं। यहां पर हर चेक पॉइंट पर, क्योंकि इस समय हम कीव के अंदर हैं, यहां इतने ज्यादा चेक पॉइंट्स हैं कि आपके पासपोर्ट की हर जगह जांच होती है, और आपके पासपोर्ट की जांच करके जब वो ये निर्धारित कर लेते हैं कि आप किसी भी तरह से इस देश के खिलाफ नहीं है या रूस के समर्थक नहीं है, तब आपको अगली जगह जाने दिया जाता है। और वायरलेस कम्युनिकेशन पर सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। खतरा इस समय इस चेक पॉइंट पर बहुत ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि ये कीव के मध्य में घुसने का एक बहुत अहम मार्ग है, और अंदेशा यही है कि अगर रूस के टैंक आएंगे तो इसी चेक पॉइंट से पार करते हुए उनके टैंक इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है और यहाँ पर चेकिंग भी बहुत ज्यादा है। तो इस बीच में आपको ये बता दूं कि इसी खतरे के अंदेशे को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि रूस का खतरा
राजधानी कीव पर ना आए, वो रूस के टैंक राजधानी कीव में ना आ जाएं, इसीलिए वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी कोशिश यही है कि इस खतरे को राजधानी कीव में आने से पहले रोक दिया जाए, बातचीत के जरिए उसको स्टॉल कर दिया जाए। लेकिन क्या वो बातचीत के जरिए अब इस समस्या का समाधान हो सकता है, जब रूस की सेनाएं राजधानी के कीव के बिल्कुल दहलीज पर खड़ी है। इरपिन बूचा पर लगभग उनका कंट्रोल हो गया है। तो अब संभवतः उनकी कोशिश यही होगी कि वो बातचीत के जरिए कंसोलिडेट करके, रीग्रुप करके एक बड़ा अटैक करें कीव पर। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवाते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जेड तरार स्पोक्स पर्सन है, आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए जेड तरार, अब ये जो भाषा बोल रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कि रूसी सैनिक हथियार डालें, आपको लग रहा है एक मजबूत सेना, एक तरफ तो आप कहते हैं नाटो के लिए अब हमारा जोर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अब आपका ये बयान सामने आता है कि रूसी सैनिक हथियार डालें, इसके जरिए वास्तव में क्या गंभीर दिशा में आपको लग रहा है कि ज़ेलेंस्की आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी जितना शुक्रिया बहुत बहुत एक बार फिर आपसे बात करने के लिए। देखिए, आपने सुना होगा चित्रा, कल ही राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हम जितना ताकत और ज़ोर डाल सकते हैं यूक्रेन के पीछे, वो हम लगातार डाल रहे हैं। हम मुसलसल राब्ते में हैं ज़ेलेंस्की के साथ, उनके टीम के साथ हम रोज़ाना उनके साथ बातचीत होती है, और जो भी हम कर सकते हैं इस वक्त वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने भी सुना होगा कि हम पोलैंड को अपने F-16s देने के लिए भी तैयार हैं। आपने सुना होगा कल हमने एक पाबंदी लगाई है रूस के तेल के ऊपर, ये सिर्फ अमेरिका का पाबंदी है। तो देखिए, हम जो हम कर सकते हैं इस वक्त वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहते हुए हमने ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि अमेरिका और नेटो ने एक बराह रास्त एक डायरेक्ट मुकाबला में नहीं जाना रूस के साथ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के फ़ायदा नहीं है, यूक्रेन के फ़ायदे में नहीं है, और वो हम हर तौर पर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ अगला सवाल यह है, ये सच बात है कि तेल को लेकर आप लोगों ने बैन लगा दिया, कुछ और बैन की तैयारी भी है, लेकिन अब आपके पास विकल्प क्या होगा? और आपको लग रहा है कि इससे रूस के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि रूस की जो स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है, अब ज़ेलेंस्की को लेकर या फिर यूक्रेन को लेकर अब बातचीत बनती हुई नजर आती है, तब तक अचानक खराब हो जाती है, कई जगहों पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये युद्ध कब तक यूं ही चलता रहेगा? और आप जैसे जो बड़े मुल्क हैं वो इस युद्ध को रोकने की दिशा में कोई ठोस प्रयत्न करते हुए, कोशिश करते हुए आकर नजर क्यों नहीं आते हैं जेड तरार जी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यूक्रेन में वो बहुत चिंता वाली बात है। पहली बात तो ये है। और देखिए, आपने भी सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ये खुद मान चुके हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन हमारा विदेश मंत्री, ये भी उन्होंने भी माना है इसको कि आने वाले जो दिन हैं वो मुश्किल होंगे यूक्रेन के लिए। और हमारी राय में ये नहीं है कि जंग युद्ध जो है ये ख़त्म होने वाली है आने वाले दिनों में, जो कि अफसोस की बात है, लेकिन हकीकत है कि जो हम देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल, ख़ास तौर पर जो रूस की राजनीति है इस वक्त, वो भी बहुत खौफनाक है, और हमें नहीं लग रहा कि ये ख़त्म होने वाला है। ये कहते हुए अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रूस को जाने देना है या उन पर हमने दबाव नहीं लगाना, तभी तो हम जितना दबाव लगा सकते हैं, पूरी विश्व जो है जितना दबाव लगा सकते हैं। रूस की ओर से कहा जा रहा है कि आर्थिक युद्ध लड़ने की कोशिश में है इस वक्त अमेरिका। रूस आपकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की एक और बोल रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो वहीं अमेरिका को लेकर रूस का ये जो बयान सामने आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है अमेरिका, रूस की ओर से ये कहा गया है अमेरिका हमारे खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने की कोशिश में है। देखिए, ये खैर जो हम सुन रहे हैं मॉस्को से, पुतिन से, उनके जो मैसेजिंग का जो तरीका है वो मेरे ख्याल में इसमें बहुत कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि पहले तो हम ये सुन रहे थे कि जो आर्थिक प्रतिबंध हमने लगाए हैं उसका कोई असरअंदाज नहीं था रूस पर, पहले तो उन्होंने ये कहा है, और फिर 24 घंटे के बाद वो कह रहे हैं कि ये एक आर्थिक युद्ध हम शुरू कर रहे हैं। तो
देखिए, मैं नहीं मानता कि बहुत जो पुतिन का जो कहना है, क्योंकि वो दिन ब दिन बदलता जाता है। लेकिन हाँ, यही तो हमारा मकसद है कि हम रूस पर एक सख्त जवाब देना चाहते हैं। हम डायरेक्ट सैनिक मुकाबला में नहीं जाना चाहते, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने उनको छोड़ना है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं। लेकिन आर्थिक युद्ध की ये लड़ाई कहां तक जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब मैं आ जाती हूं जरा पोलैंड पर। हमारे साथ और भी मेहमान हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनके भी सवाल होंगे, लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूँ पोलैंड की ओर से। अपने MiG-29 विमान यूक्रेन को देने की बात कही गई है। आप लोगों को लगता है, अमेरिका को लगता है कि इससे हालात और ज्यादा खराब होंगे? अमेरिका को इस बात का क्यों एहसास होता है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी? जी, असमें बात यह है कि किस तरीके से हमने ये MiG-29 यूक्रेन तक पहुंचाने हैं। इस वक्त जो पहली बात तो ये कि हम बातचीत में हैं, राब्ते में हैं हम पोलैंड के साथ, ताकि हम किसी तरीके ये MiG-29 यूक्रेन तक पहुंचा सकें। लेकिन जो अभी हमने सुना है पोलैंड से, जो प्लान है उनका, वो थोड़ा हमें ठीक नहीं लग रहा। यानी कि वो चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि MiG-29 जर्मनी तक जाएंगे और जर्मनी से फिर अमेरिकी हाथों में से यूक्रेन तक वो हम डालेंगे। ये हमें ठीक नहीं लगता, ये एक एस्केलेशन लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तरीका हम निकाल लेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या तरीका निकालेंगे? ज़ेड-टेरर आज 14वां दिन है और यहाँ पर एक तरफ बातचीत की बातें सामने आती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिससे लगता है कि अगर इसी तरह से जुबानी जंग जारी रही तो बातचीत कैसे बनेगी? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी क्या समझाने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन को भी, क्योंकि नाटो देशों को लेकर, अमेरिका को लेकर रूस हमेशा से ही एक संदेह के घेरे में आप लोगों को देखता रहा है और माना जा रहा है यूक्रेन ये जो लड़ाई लड़ रहा है वो तो मात्र मोहरा है, असली लड़ाई तो अमेरिका के साथ ही है। इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं। जी, मैं भी बहुत ही, हम जाहिर बात है सुन चुके हैं पुतिन से ख़ास तौर पर कि ये जो असल में मुकाबला हो रहा है, ये रूस और यूक्रेन का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये रूस और अमेरिका का मुकाबला है, जो कि गलत है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, उन्होंने अमेरिका पर हमला नहीं किया। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जाहिर बात है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारी तरफ कोई मुकाबला है लेकिन बम धमाके यूक्रेन पर गिर रहे हैं।